Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 6 of exercise 3.4. Now question number 8. We have to find the greatest number of 6 digits which is a perfect square. So greatest number of 6 digits क्या है? Greatest 6-digit number is 6 times 9. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो चलिए let us start taking out its square root. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ये देखिए pairing हो गया. Now let us begin. 9 9s are 81. Remainder 18. Now we will bring down 99. 9 का डबल 18. बगल में 9, so 189 into 9 gives us 1701. After subtraction we get 198. फिर ये डबल 9 नीचे. ऑलराइट, अब यहाँ पे 99 का डबल क्या हो गया? 198. फिर बगल में 9 लिखेंगे. ऑलराइट, ऊपर फिर से 9. फिर ये होगा हमारा 17901. आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 1998. तो अब क्या हो गया? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर है. हेंस दिस ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोगों को ये जो रिमाइंडर है उसको एक्चुअल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होगा. अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि मैम कैसे डिसाइड करें कि कब ऐड करना है या कब सब्ट्रैक्ट करना है. तो जैसा सम नंबर 7 में था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. ऑलराइट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो उसमें अगर रिमाइंडर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो तो नो डाउट 3 डिजिट में आ गया. तो इसीलिए हम लोग वहां सब्ट्रैक्ट नहीं किए थे, रादर उसका नेक्स्ट स्क्वायर रूट का वैल्यू से ओरिजिनल नंबर को माइनस किए थे. ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए. तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो 2-3 बार देखना होगा. राइट, कि वहां पे उसका नेक्स्ट स्क्वायर रूट जो है उससे बड़ा स्क्वायर रूट का जो वैल्यू था उससे ओरिजिनल नंबर को माइनस किए और उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिए. अब यहाँ पे सम नंबर 8 में बोला गया है द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर. अब ये इसमें भी रिमाइंडर बचा. अब इसमें से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो भी हम लोगों को 6 डिजिट नंबर ही मिलेगा. तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट किए. सो नाउ लेट मी कंटिन्यू. Therefore, by subtracting 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 1998, we get 998001. ये भी देखिए 6 डिजिट है and this is a perfect square, which is a perfect 6 digit, which is a perfect square of the required 6 digit greatest number. So now in question number 9, as you can see on the screen, triangle ABC is given जो कि एक right angle triangle है. कैसे पता? क्योंकि one of its angle mentioned is 90 degree, which is angle B or angle ABC, right?
AB given 14 centimeter, BC is 48 centimeter, and we need to find AC. Now, in a right angle triangle, AC is the longest side. Alright, ये longest side find out करने का एक formula है. According to the Pythagoras theorem, this is the longest side which is lying just opposite to right angle or 90 degree. Right? तो इसका formula क्या है? AC square is equal to AB square plus BC square. रीजन क्या देंगे हम लोग? Pythagoras theorem. तो AC निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो गया? AC square is equal to AB, that is 14 square plus 48 square. Alright, that is 196 plus 2304, that gives us 2500. अब यहाँ पे क्या हो गया? AC is equal to, ये जो स्क्वायर था वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2500. अब यहाँ तक तो हम लोगों ने आपको सिखाया है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है. तो वो निकालने पे AC का वैल्यू निकलेगा 50 सेंटीमीटर. इफ़ यू वांट हम इसका एक रफ में बता दे रहे हैं. ये देखिए 2500 पेयरिंग. So 5 5s are 25. No remainder. We will bring down 0. तो कुछ तो डिविजिबल होगा नहीं, तो ऊपर हम लोग ये 0 लिख देते हैं. So this is how we got the answer 50. Alright. तो ये है हमारा Pythagoras theorem. And always remember, in the right angle triangle, the longest side which lies opposite the angle 90 degree is called hypotenuse. Alright. Now we will move on to part 2 of question number 9. Now as you can see on the screen, right angle triangle ABC is given where angle B is 90 degree. The longest side or the hypotenuse measure 37 centimeter. BC is 35 centimeter. Now we need to find out the value of AB. So चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? AC square is equal to AB square plus BC square. रीजन है Pythagoras theorem. तो चलिए सबका वैल्यू बैठाते हैं. AC square, that is 37 square is equal to AB, we need to find out, plus 35 square. अब हम लोग क्या करेंगे? जिसको फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं. ऑलराइट. सो तो अब ये देखिए कैसे लिखेंगे? AB square plus 35 square is equal to 37 square. AB square is equal to 37 square minus 35 square. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूछेंगे कि मैम स्ट्रेट अवे इसको यहाँ कर देते और इसको यहाँ ले आते. अगर आप वैसा करते तो क्या होता? ये जो 37 इधर आता वो नेगेटिव हो जाता और ये 35 छोटा है 37 से, तो हमारा आंसर नेगेटिव आता. इसीलिए ये एंटायर लाइन को हम लोग इस तरह से अरेंज किए हैं. उसके बाद देखिए 37 पहले आ गया, उसके बाद आया -35. सो ये सब छोटे छोटे चीज़ें आपको दिमाग में रखना है. ये देखिए इसको हम पेंसिल से रफ में यहाँ कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस यहीं पे हम लोग उसको चेंज कर देते तो वो कैसा होता? ये देखिए AB वहाँ ले जाते. AB स्क्वायर is equal to 35 square minus 37 square. अब यहाँ देखिए AB जो था वो is equal to के उस तरफ गया, तो नो डाउट ये भी प्लस से माइनस हो गया. जिस तरीके से 37 स्क्वायर
इज इक्वल टू के वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड आया तो नेगेटिव हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव AB स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू नेगेटिव द आंसर। फिर नेगेटिव नेगेटिव हम लोग को कट करना होगा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़रा सा अगर आप ये साइन चेंज करने में भूल करते हैं तो इसमें आपका आंसर रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा है। पर अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। सो ये दोनों तरीका है करने का, या तो आप एंटायर लाइन को इस तरह से लिखें और फिर आप उसको सॉल्व करें, या तो फिर अगर आप वहीं पर साइड चेंज करते हैं, मूविंग फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, तो उसमें आपको साइन चेंज करने का याद रखना होगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 1369 minus 1225, that gives us 144. So AB is equal to 144, और ये जो स्क्वायर था वो हो गया स्क्वायर रूट, एंड 144 का स्क्वायर रूट क्या है, 12 is 144. So the measurement of side AB is equal to 12 centimeter.